નમસ્કાર સમાચારો સાથે હું છું વિધિ। સૌથી પહેલા વાત અન્નદાતાના આક્રોશની। સરકાર તરફથી વાર્તા પ્રસ્તાવ અને બેઠક બાદ પણ 6 દિવસથી ચાલતું ખેડૂત આંદોલન રોકાઈ નથી રહ્યું। ખેડૂતો અને કેન્દ્ર સરકાર વચ્ચે બેઠકનું પરિણામ શૂન્ય આવતા ખેડૂતો ફરી ધરણા પર બેસી ગયા છે। ખેડૂતોએ આંદોલનને વધુ ઉગ્ર કરવાની ચીમકી આપી છે, જેના કારણે દિલ્હીની સરહદો પર સુરક્ષા વધારી દેવાઈ છે। સંયુક્ત કિસાન મોરચો આજે કેન્દ્ર સરકારની કૃષિ કાયદાઓને પોતાની આપત્તિઓની યાદી મોકલશે અને આવતીકાલે સરકાર અને ખેડૂતો વચ્ચે આગામી દોરની વાતચીત થશે। તો વધુ ઉગ્ર બનતું ખેડૂત આંદોલન અને ગઈકાલની બેઠક નિષ્ફળ રહ્યા બાદ ગઈકાલની બેઠકમાં જે આજે ત્રણેય પ્રધાનો હતા તે આજે શાહને મળશે। પિયુષ ગોયલ, સોમપ્રકાશ અને નરેન્દ્રસિંહ તોમર આજે અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરશે। વધુ जानकारी साथ हमारा संवाददाता दिल्ली से अत्यार जुड़ाई गया है विवेक शर्मा। विवेक, अभी क्या स्थिति वहां पे, क्योंकि कल की जो बैठक हुई वो बेनतीजा रही, कल वापस एक मीटिंग होने वाली है। इन सब के बीच क्या अभी भी किसान वहां अड़े हुए हैं? बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए तो कल की बैठक बेनतीजा निकली, लेकिन किसान जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किए हुए हैं। 7वां दिन है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी तादाद में किसान जो है वो टीकरी बॉर्डर पे इकट्ठा हो चुके हैं। लगातार ये संख्या जो है बढ़ती चली जा रही है। सीधे इनसे ही बातचीत करते हैं कि 3 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है उसको लेकर इनकी क्या उम्मीदें हैं। 3 तारीख को मीटिंग होने वाली है। कल की बैठक जो बेनतीजा निकली थी। अब ये कहा गया था कि आप लोग एक सूची बनाइए जो भी आपको कानून में कमियां नजर आ रही है और कल जो है उस पर डिस्कशन किया जाएगा। तो कितना लग रहा है, कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर समाधान निकलेगा? ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਜੋ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ 2 ਕਮੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਝੋਨਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਡੀਸੀ ਜਾਂ एसडीएम तक ही ਤੁਸੀਂ पहुंच सकते हैं, ਤੁਸੀਂ कानून का दरवाजा भी नहीं खड़का सकते। बोला गया है कि आज जो है आप लोग किसान नेता जो भी हैं मीटिंग करेंगे और सूची बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे कि कमियां क्या है कानून में। आपसे पूछूंगा 3 तारीख को मीटिंग होने वाली है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम अमरजीत हनी, खेती किसान यूनियन जिला बठिंडा का प्रधान है। ਇਹਦੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ, MSP 23 ਫਸਲਾਂ ਪਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਆ, पर वापस हटना भारत सरकार लिए मजबूरी आ। साडा एक ही प्रश्न है कि तीनों कानून रिजेक्ट करो, इदू घट कोई भी ये गल करना फायदा नहीं। देखिए, तीनों कानून रिजेक्ट करें, इनकी ये मांग है। आपसे पूछूंगा 3 तारीख को मीटिंग है, कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? क्या कोई बीच का रास्ता निकलने वाला है या फिर आपकी जो मांगे हैं पूरी होने वाली है? क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखो जी, हुण दिल्ली आए हैं, मेन तो है जी 3 तरीक नूं भी कोई अच्छा झंडा निकलेगा, तो जे ना निकलिया जी साडा संघर्ष तो जारी रहेगा। तो ਜਿਹੜੇ 3 ਐਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 2020 ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਇਥੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 5 ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਗਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੱਲਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੀ ਘੇਰ ਕੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ जी। जिस तरह से बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कह चुके हैं कि किसान जो कानून है वो आपके हित में है, आपको नई जो है उसमें चीज़ें मिलने वाली हैं। कि मोदी जी ये बात कह रहे हैं और लगातार आप लोगों से बातचीत जो है वो भी की जा रही है सरकार द्वारा। तो अब आपको क्या लग रहा है, कोई रास्ता जल्दी निकलने वाला है? देखिए, किसानों के लिए बात करें कि किसानों के हित में बिल है, लेकिन किसानों से ना तो पूछ के बनाया बिल, ना किसानों को विश्वास में लिया गया। अब किसानों को जो भरम है, जहाँ भरम है कि MSP के ऊपर भरम है और जो कंपनी आएगी उनके ऊपर भरम है, ये छोटे किसान कहाँ जाएंगे? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों को समझाए, भाई ये आपके लिए सही है। लेकिन जब बिल में किसान जो खेती करता है ज़मीन के, उसको पता है ना कि खेती में क्या क्या दिक्कतें होती है, MSP अगर नहीं मिलेगा तो किसान बर्बाद हो जाएगा। जब किसान को पता है ज़मीनी हकीकत का, सरकार को पता नहीं है, हम तो अपने बिल्कुल जो पॉइंट है वो रख रहे हैं।
और अपनी जो मांग है हमारी बिल्कुल जायज़ है। जब तक हमारे ये जो तीनों कानून, जो काले कानून हमारे ऊपर थोपे गए हैं, जब तक ये खारिज नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे किसी भी हालत में। जो मांग है वो आपकी तीनों कानून जो है वापस लेनी ही है। हाँ बिल्कुल यही है, इसका रास्ता निकलते बिल्कुल बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। सरकार को यहाँ से झुका के जाएंगे, तीनों जो काले कानून हैं इनको खारिज करवा के ही जाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, पिछले साल ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਰਿਆ ਗਾਲਾ ਸੱਪ ਪਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਕਹਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਤਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆਗਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ ਹੈ, 40 ਗੱਟੇ ਆਟੇ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਜ਼ਿਕਰ ਪਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜੇ शाबाश है, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ बहुत बड़ा धन्यवाद कर देंगे। मंगलवार को 4 घंटे मीटिंग हुई है सरकार के बीच में और किसान नेताओं के बीच में। काफ़ी बातों पे डिस्कशन भी किया गया था। किसानों को कुछ बातें बोली भी गई थी, जैसे कि कमेटी बनाने के लिए जो बाद में किसानों ने मना कर दिया गया। अब 3 तारीख को चर्चा होनी है, दोनों के बीच में फिर एक बारी फिर बातचीत होने वाली है। कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? उम्मीद तो देखो, उम्मीद पर ही तो हम यहाँ बैठे हैं। बाकी लग नहीं रहा भी सरकार इतने जल्दी अपना अहंकार तोड़ेगी, क्योंकि जो ये काले कानून है किसानों ने तो नहीं मांगे, और मोदी जी कह रहे हैं भी ये कानून किसानों के हित में है। तो किसानों के हित में जब चुनाव के समय तो आपने स्वामीनाथन की चर्चा करी थी, आपने कर्ज माफी की चर्चा करी थी, उस पर भी तो कुछ अमल करते। ये कानून तो अपने उद्योगपति साथियों के लिए लाए हैं, किसान के लिए नहीं लाए। किसान को जब वो खेती करता है उनको पता नहीं भी अब हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। उनको तो है ना, वो उनके साथ बिजनेस जो उद्योगपति लोग हैं उनकी चिंता है, न कि किसानों की। शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। तो हमारा संवाददाता दिल्हीથી જાણકારી આપી રહ્યા હતા, જેમાં ખેડૂતો સ્પષ્ટપણે કહી રહ્યા છે કે આ ત્રણેય જે કાનૂન છે તેને રદ કરવા જોઈએ, નહીં તો તેઓ દિલ્હી જામ કરીને રહેશે।